Okay, so I am live again. Uh, so I'm really not sure if my followers or my people here are active or not. Hang on, we are telling more followers to join your video. That's what Instagram has just told me. Hello, DJ. How are you doing? Hi, Shekhar Rishabh. Thank you for joining in. And it's my another random live. Actually, I have not decided any topic or anything for today, just as typical me. और मैं दिन में भी कभी लाइव नहीं की हूँ. इट्स माई फर्स्ट टाइम हियर. मैं सोचा देखती हूँ if people are available to talk to or to have some concerns or something to discuss, anything. How's your workshop going on? Hi Swasti. DJ, what about your coaching? What all you have planned new? I'm very good, Shekhar. Thank you so much. What should I call you, Shekhar, or I should call you Rishabh? What is your first name? Hi Parul. Hi Fit Life. How are you? Thank you guys for joining in. Shubham Sharma, and I'm sorry if I'm occupying your time. क्योंकि मैं कुछ ऐसा फ्रूटफुल और कुछ वैल्यूड यहाँ शेयर नहीं कर रही हूँ टुडे. It's just a very random live or Q&A or a question answer. Q&A and question answer are same. Q&A or some communication, any discussion on any topic. It's an open live today. I just thought to see. I was wondering if people would like to join me in the afternoon sessions or not. तो मैं सोचा एक बार ट्राई मार लेती हूँ. So hi Bhavik, hi Shubham, how are you? Yes, Rishabh. So I'll call you Rishabh then. Great. So guys, do you have any questions? कल मेरा ZSB second season of ZSB course was finished and it was awesome. People had really appreciated, and उससे भी ज़्यादा I was happy to see their responses, when people get some insight, when people get to know something which they were not aware of, और जो उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आता है ना, that I think that is it, that is what you work for as a coach. That is my earning, other than the business part or the finance included, anything that's a separate thing. But when your people who had put faith in you, who had come for your courses or your live sessions just like you guys, and when you get some valued knowledge out of it, और जो वो contentment का expression होता है चेहरे पे, I just love it, and I'm so glad that I got it once again. In my last ZSB, we just finished, last evening we finished the final webinar also, so it was really great. So thank you everyone who had promoted my ZSB stories also on their storyline. It really meant a lot. So gratitude from my side to all of you who had supported me, wished me, and encouraged me in some or other ways. So Rishabh has a question: how to complete daily task? Thank you, Rishabh. Okay, that's a very simple thing, Rishabh. You have to literally prioritize. Time management का सबसे इम्पॉर्टेंट की होता है हाउ यू आर प्रायोरिटाइजिंग. अगर आपको प्रायोरिटाइजिंग की ट्रिक समझ आ गई, then you are sorted for the entire day, and your day has to be a productive day for you. तो आपको करना क्या है? यू कैन नॉट फिनिश ऑल द टास्क एट वन गो. यू कांट बी अ मल्टी टास्कर ऑल द टाइम. ये आपको समझना ज़रूरी है. आपको ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा टास्क आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सा अर्जेंट है, और कौन सा अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट दोनों है. सो यू रियली हैव टू सेग्रीगेट द टास्क ऑफ योर डे. कोशिश करो एक दिन पहले टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर पाओ कि कल के लिए मैं अपनी ये 3 या 4 मोस्ट प्रायोरिटी लिस्ट पर काम करूँगा, और इसके बाद इफ़ आई गेट सम टाइम फॉर माई सेल्फ तो मैं ये टास्क देख सकता हूँ, ये नॉन अर्जेंट टास्क या नॉन इम्पॉर्टेंट टास्क पे काम कर सकता हूँ.
और अगर उसके बाद भी टाइम बच जाता है तो डोंट ऐड ऑन मोर टास्क फॉर यू. टेक आउट सम टाइम फॉर योर ओन सेल्फ. जर्नल राइटिंग करो, नेचर वॉक पे जाओ, अपनी क्रिएटिव स्किल बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो उस पर ध्यान दो. हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है. नो, कनेक्ट विद दोज पीपल विद whom you can learn more in a fun way, who can elevate your positive vibrations. That will also help you. ये ऑफ ट्रैक लग रहा होगा शायद आपको, बट दिस इज़ एब्सोल्युटली इन ट्रैक ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट बिकॉज इट विल हेल्प यू टू declutter your task, your thoughts, and would let you be able to finish your task on time. So I hope मेरा पॉइंट आपको वैलिड लगा हो ऋषभ. ट्राई करना, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. Some people done one by one. Yes, that's okay. Either see, multitasking आप कर सकते हो, it's even good. नहीं कर सकते हो और आप एक काम पर फोकस करके उसे पूरी तरीके से ख़त्म करके तब सेकंड पे जंप करना चाहते हो, that's equally good. That's completely depend upon your personality. Like I am not a multitasker. I'm a one work type person. वो एक काम जब तक मैं अच्छे से ख़त्म नहीं कर लूँ और मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, I don't jump onto the other thing. और कभी कभी अगर ऐसे इवेंट्स आते हैं व्हेन आई हैव बैक टू बैक इवेंट्स और मुझे एक दिन में चूज़ करना पड़े कि मुझे इस टाइम पे क्या काम करना होता है, तो मुझे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं. एंड देन आई रियली हैव टू कोच माई सेल्फ वंस अगेन और मुझे अपने को नॉर्मलाइज करना पड़ता है. सो या दिस इज़ द रबर बैंड. क्योंकि मैंने बाल खोले हुए हैं अभी, तो मैंने हाथ में ही बांध लिया है बिकॉज मैं भूल जाती हूँ रख कर. सो इसलिए मैंने हाथ में बांधा हुआ है. हाय एक्सियो, ये कैसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं? आई रियली वांट टू नो दिस. नो, बिकॉज आई थिंक मेरे को गूगल करना पड़ेगा अबाउट दिस नेम. एक्यूपीस, राइट? एक्यूपीस, something like that, or is it something else? If anybody wants to tell me. Hi Murli Krishna, thank you for joining in. Do you guys have any question? या मैं ही एक साइड बोलती रहूँ कुछ भी रैंडम. और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर डेली स्ट्रगल्स, योर मेमोरी रिटेंशन, योर कॉन्सेंट्रेशन, योर स्ट्रेस इश्यूज, योर एंग्जाइटी और एनीथिंग लाइक दैट, हाउ टू रिमूव स्टेज फियर. मुरली जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. मैं पहले जानना चाहती हूँ व्हाट लेवल ऑफ स्टेज यू आर टॉकिंग अबाउट. इज़ दैट लाइक अ पब्लिक फोरम or it's like an online platform or a school stage or a college, university, whatever. basic जो इसकी हर किसी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जो बहुत ज़रूरी है, या कैमरा पे आने के लिए, या लोगों से मिलने के लिए जो बहुत ज़रूरी है. वैभव, दिस इज़ गोइंग टू बी माई लाइव एक्चुअली, सो आई विल टेक यू इन सम टाइम. गिव मी सम टाइम, आई विल एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट. क्या रहने दीजिए Vaibhav? I didn't get it. Okay, no issues. So first I'll come to this marriage. Okay. So first we really have to understand, Murli, that why we are fearful of people or why we are fearful of communicating with people. राइट हमें उस रूट कॉज को ढूंढना होगा. मे बी यू हैव अ फियर ऑफ मॉकिंग, फियर ऑफ जजमेंट, मे बी यू आर नॉट हैविंग अ वेरी हाई सेल्फ एस्टीम, यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि आप अच्छे से डिलीवर कर पाओगे या नहीं, या लोग आपको जज करेंगे या नहीं, लोग आपका मजाक तो नहीं बनाएंगे अगर आप ना कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, किस तरीके से रख रहे हो. बेसिकली इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू योर सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ वर्थ, कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो और कितना अच्छा सोचते हो. सो अगर आप कंप्लीटली पब्लिक फियर को अपने मन से हटाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने अंदर अपनी सेल्फ एस्टीम की वैल्यू हाई करनी पड़ेगी. आपको अपने बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा. और द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टास्क इसके अलावा, I'm so sorry, I got confused with the comment here. Okay. उसके अलावा प्रैक्टिस इज़ दी की, मुरली.
जब तक आप ये सोचते रहोगे कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, 100% चांसेस आर कि आप नहीं कर पाओगे। आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। आप पहले छोटे सर्कल से शुरू करो, जो आपके इनर सर्कल के लोग हैं, जिन पर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप कितना भी बोलो, कितना गलत बोलो, कितनी बार रीटेक करके बोलो, दे विल ऑलवेज अप्रिशिएट यू, दे विल ऑलवेज सपोर्ट यू। उनके साथ आप धीरे 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 जैसे ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, ट्राई टू इंक्रीज योर सर्कल। धीरे धीरे ट्राई टू इंक्लूड मोर रैंडम पीपल इन योर सर्कल who can come and see you, listen you. That will actually slowly reduce your public fear, and one fine day you will be hell confident to speak like this any point of time. I hope this helps you. Try it once and let me know too. Live करो यार, बेस्ट लाइफ पर आओ। 2 लोग भी आते हैं, उनके साथ बोलना शुरू करोगे, वो रिस्पॉन्स करना शुरू करते हैं, अपने आप मोटिवेशन आता है एंड यू लाइक टू स्पीक मोर, and that really works. And I hope this helps, Murli. There was one another question. Murli का स्टेज फियर था, आई थिंक दैट हैड हेल्प्ड यू। मुरली वीडियो फियर के लिए अगेन मैं ऋषभ वही बात बोलूँगी जो मैंने अभी मुरली को कहा। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, अपने लुक्स के लिए, अपने बात करने के तरीके के लिए, अपनी नॉलेज पर, अपनी पर्सनालिटी पर, यू टेंड टू फाइंड आउट एक्सक्यूजेस कि आपकी वीडियो स्किल्स अच्छी नहीं है, आपका कैमरा इतना अच्छा नहीं है, आपको एडिटिंग नहीं आती है। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पर हम ब्लेम डाल देते हैं, बट कहीं ना कहीं इट इज़ ऑल इनसाइड अस, बिकॉज वी आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन आवर सेल्व्स। तो सबसे पहले जो मुरली को कहा वही आपको बोलूँगी, प्लीज़ ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ एस्टीम, ऑन योर इनर इश्यूज, ऑन योर इनर कंसर्न्स, और उसके बाद जस्ट ट्राई विदाउट हैविंग एनी जजमेंट ऑन योर सेल्फ। अच्छी बन रही है, बुरी बन रही है, 4 रीटेक में बनी है या 40 रीटेक में बनी है, just shoot it and upload it. You will always connect with your tribe, trust me. There will be lot of people who will resonate with your 40 takes video also, because वो लोग हैं जो शायद resonate करते हैं कि हम भी we have this video fear, video making fear, camera fear, and he has done this, so why not we? So you will always connect with your tribe, but you have to take your first step. I hope this helps. We both are not ready. Vaibhav, who we? Okay. Thank you, Parul. Thank you. How to stay productive and to focus on one task. मैंने I think आप join नहीं किए थे, उससे पहले ही इस productivity पर बोला था। मैं दोबारा बोलती हूँ, फोकस के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू डी क्लटर योर माइंड, इट्स इम्पॉर्टेंट टू डी क्लटर योर टू डू लिस्ट ऑल्सो, तभी आप फोकस कर पाओगे। जो सबसे ज़्यादा अर्जेंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी 1। कोशिश करो ये टू डू लिस्ट एक दिन पहले प्रिपेयर कर पाओ तो बहुत अच्छा है, दैट विल एक्चुअली सॉर्ट योर डे द मोमेंट द नेक्स्ट डे स्टार्ट्स। नहीं कर पाते हो, सो द वेरी फर्स्ट hour, the first 2 hours of your day, try to plan your day ahead. कौन सा सबसे ज़्यादा अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट है, कौन से सिर्फ अर्जेंट है, कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, और कौन से नॉन अर्जेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट है, तो आप उनको ऑफ कोर्स एकदम लास्ट में डाल सकते हैं। उनके लिए आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, और धीरे धीरे प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 करके अगर आप काम करोगे तो बहुत ईजीली आप फोकस भी कर पाओगे और आपकी प्रोडक्टिविटी भी हायर होगी। Okay, so coming back to Vaibhav. Vaibhav, I didn't get your point. You are saying that you and the girl you have chosen, or the girl your parents have chosen, you both are not ready. So please tell your answer once again, question you once again. You have a fiance already, like that means you're committed. So what is the issue then? Thank you, Vaibhav, once again for the compliment. Hi Priyadarshini, thank you for joining in, and I think Shantanu ने भी join किया था, तो thank you Shantanu for joining in. Hi Yodhan, hi Girdhari, hi Saurabh.
so many people. Okay, I got one question also. हाँ, इसको ऊपर कैसे लाते हैं क्वेश्चन को? आई एम सो सॉरी, आई एम सो बैड इन ऑल दिस. Okay, how we manage time and fully focused on study. Again the same thing I will suggest. स्टडी के लिए एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं. हम अपना कोर्स स्ट्रक्चर देख के या कंपटीशन, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फियर हमारे ऊपर बहुत भारी हो जाता है, हावी हो जाता है, सॉरी, एंड वी फील लाइक दैट वी वोंट बी एबल टू मेक इट. और उस नेगेटिव थॉट की साइकिल में हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपने टाइम पर फोकस ही नहीं कर पाते, अपनी कोर्स पर फोकस नहीं कर पाते. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, वो 10th के हैं, 12th के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, या यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यू एक्चुअली हैव टू कट ऑल दी कॉर्ड्स ऑफ नेगेटिविटी in your mind and around the people who keeps on telling you. There are a lot of people who don't study for more than 2 hours or 4 hours in a day and they score high marks. It happens. Why? Because उनकी memory retention high है. They are not God gifted. They just plan their day ahead. They plan their course structure ahead. So planning is the basic of any task you do. Be it your preparation for your exams or your day or your company meetings, college meetings, whatever. He is also preparing myself for competitive exam. So yes, so this is what I want to share. First, you have to grill. There are two important aspects of it. First, are you really willing to study right now, at this moment, or for this exam, or is it under pressure, or are you following some trend, or do you see some high prospects, some high income prospects in it, but you don't really feel connected with it. फर्स्ट, अक्सर हमारे डेविएशन का, हमारे प्रोक्रास्टिनेशन का कारण हमारे इमोशनल टर्बुलेंसेस से जुड़ा होता है, हमारी इमोशनल रीजनिंग से जुड़ा होता है. दैट्स नथिंग रिलेटेड टू द डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट. इट्स एब्सोल्युटली योर इमोशनल रीजन्स. So if you are procrastinating for studies, that may be a reason that you are not actually prepared to study right now. You have some other deeper sense of purpose which you may be ignoring out of public fear, out of your parents' will, out of maybe your own confusion to what to follow or what to not. सो प्लीज़ पहले उसको चेकआउट कीजिए, वॉट एग्जैक्टली इज़ द रीज़न. द मोमेंट यू गेट द क्लैरिटी, you have to plan your studies, you have to plan your day and take out some break times also. मैं कितने यूपीएससी और what do you call that, टॉफिल एग्ज़ाम्स के बच्चों को काउंसिल की हूँ, नॉट दी बच्चे एनी मोर ऑफ कोर्स, बट उनको मैं काउंसिल की हूँ बिकॉज दे स्टडी 10 to 12 hours non-stop and then they come back from the coaching and take a half an hour nap or something and then they again start studying and by the time they doze off they are completely burn out. नेक्स्ट मॉर्निंग का भी यही रूटीन है, उसके नेक्स्ट मॉर्निंग का भी यही रूटीन है. एंड नाउ एज सून एज द एग्जाम्स आर अप्रोचिंग नियर बाय, नो मैटर हाउ हार्ड दे हैव स्टडीड, दे आर अंडर कॉन्फिडेंट कि जो पढ़ा है वो मुझे याद ही नहीं है, 2 दिन पहले का पढ़ा हुआ याद ही नहीं है. Why? Because you are not a machine. Your brain is not a machine. It needs rest, it needs recoup, it needs rejuvenation as well. So please take out some little breaks in between your busy schedules of study that will actually motivate you further to study more, that will increase your concentration. Science has also proven it. सो उसको टाइम वेस्ट की तरीके से मत देखिए, टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह से देखिए कि आप जो 10 मिनट 15 मिनट का शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं, वे यू आर गोइंग आउट, वे यू आर लिसनिंग म्यूजिक, वे यू आर रेस्टिंग, दैट इज़ एडिंग वैल्यू टू योर टाइम स्केड्यूल. आई होप दिस हेल्प्स. कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज़ DM करो, विल टॉक ऑन इट अगेन. हाउ मच ये मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर क्यों नहीं आ पा रहा है? वाई? ओके,
ये मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ. दैट्स द कंप्लीट क्वेश्चन. गिरधारी, दैट्स ग्रेट. ऑल्सो स्किप माई जॉब फॉर दिस एग्जाम. हाउ मच टाइम डेली. डेली के आगे मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ. सो इफ़ यू कैन राइट हेयर ओनली. और मैं उसको ऊपर भी नहीं ला पा रही हूँ. वाई इट इज़ हैपनिंग, आई डोंट नो. ओके, सो आई होप दिस हेल्प्स. गिरधारी, just try to make some schedule for yourself and before it try to dig deep कि आप वाकई इस टाइम prepared हैं या नहीं ये करने के लिए. This will really help. ओ आ गया. Okay, how much time daily required? This is completely on you. आपको क्या लगता है आपका कितना मेमोरी रिटेंशन है, आपकी सिटिंग पावर कितनी है. डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ जस्ट बिकॉज योर फेलो पर्सन, योर फेलो पीपल, योर फेलो फ्रेंड इज स्टडिंग फॉर 10 hours, तो आपको भी 10 घंटे पढ़ना है. प्लीज़ डोंट डू दैट. प्लीज़ डोंट टॉर्चर योर माइंड एंड योर बॉडी. जितना आपका रिजीम रहा है सिंस योर स्टूडेंट लाइफ, स्कूल लाइफ, आप उसे ही फॉलो करो. उसी में ही थोड़े ट्वीक्स करने की कोशिश करो डिपेंडिंग अपॉन दी, सिंस ऑफ कोर्स इट्स अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आपको और तैयारी मेहनत करनी होगी. एंड सिंस यू हैव गिवन अप ऑन योर जॉब ऑल्सो, सो प्रैक्टिकली यू हैव लॉट ऑफ टाइम. योर डे टाइम ऑल्सो इज़ विद यू नाउ. सो इट्स एब्सोल्युटली ऑन यू कि आप कितने घंटे देना चाहते हैं अपनी पढ़ाई को. प्लीज़ प्रिपेयर अ टाइम टेबल and strictly follow it. That would be my tip for you right now. 15 hours अगर आप एक दिन में लगा रहे हो, and are you satisfied? Do you think 15 hours are enough, or do you still feel that you should have studied more or you should study more? इट्स ऑल इन योर हैंड्स. जैसे मैंने कहा, आपको लगता है 15 से ज़्यादा आपको पढ़ना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी एंड योर माइंड कैपेसिटी, प्लीज़ गो अहेड. और अगर आपको बर्नआउट जैसी फील आ रही है तो प्लीज़ डोंट डू दैट. प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट. डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ. जितना याद होगा वो भी शायद इस कॉन्फिडेंस और इस स्ट्रेस में आप भूल जाओ परफॉर्म करना. परफॉर्मेंस एंग्जाइटी भी हो सकता है बिकॉज यू आर बर्निंग आउट टू मच. और अगर लगता है कि अब मैं और पढ़ सकता हूँ तो प्लीज़ स्लोली कीप ऑन एडिंग हाफ एन आवर 15 minutes टू योर regime. ओके, व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम? को जो बहुत स्टूडियस बच्चे होते हैं ना, उनके लिए कोर्स कभी ख़त्म ही नहीं होता है. पता है, उनको कितना भी पढ़ाओ उनको लगता है कि ये तो रह ही गया, ये भी मैं पढ़ लेता हूँ, बिकॉज लर्निंग इज़ ऑफ कोर्स अनलिमिटेड and you cannot complete everything. So you really have to prioritize and you really have to strategize your course structure. That would be my advice to you. And coming back to Vaibhav here, many girls want to spend time. How to avoid? Okay, many girls want to spend time with you, but you are engaged, right? So avoidance का मतलब ही नहीं आता. Just tell them straight away that you are engaged. Why any girl would want to spend a time with an engaged man? March को अगर एग्ज़ाम है तो अब तो मुझे लगता है रिवीजन टाइम आ जाना चाहिए. अगर कॉम्पिटिटिव है, टुडे इज़ व्हाट, आज क्या है, 8 है. चलो कुछ दिन और है ना. आई थिंक 20 से तो आपको रिवीजन पे लग जाना चाहिए. तो 20 तक खींचो जितना खींच सकते हो. और सिंपल, इतना बर्डन अपने पे मत डालो कि कितना बच गया है. जितना कर सकते हो उतना करो एंड देन स्टार्ट रिवाइजिंग. और ऑफ कोर्स वो आपके कोर्स कंटेंट के हायर प्रोपोर्शंस पे है भी या नहीं, मार्क्स प्रोपोर्शन पे पता चला वो लेसन्स कर रहे हो या वो टॉपिक्स कर रहे हो जिनकी परसेंटेज वैल्यू आपके एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत कम है. So then there is no point. Try to cover up those topics जिनकी परसेंटेज वैल्यू, मार्क्स वैल्यू ज़्यादा है. ये मुझे क्वेश्चन चाहिए स्क्रीन पर. Oh, I love this.
थैंक यू सो मच, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. ये मेरा सीक्रेट है जो मैं किसी को नहीं बताती हूँ. इट्स एब्सोल्युटली माई वाला सीक्रेट, सो मैं लाइफ पे नहीं बताऊँगी. ओके. नहीं, जोक्स अपार्ट, मुझे नहीं पता. आई थिंक आई जस्ट कनेक्ट विद माई ट्राइब, और मुझे आपके जैसे लोग मिले हैं जो मेरी ट्राइब में है, मेरी कम्युनिटी में है. तो हाउ आई कांट बी अमेजिंग, बताओ. if my people are amazing here, I have to match the vibes of you, na. क्या करें? Okay, so coming back to Vaibhav. Yes, I think Fit Life, he sometimes behave very funny, and no answer for you, yaar. Is per you have to draw your boundaries. If you cannot draw your boundaries, it is your failure, not anybody else. Say for instance, I am married, I am having a child. That doesn't mean I do not get the proposals yet, but it's all up to me. How am I tackling with them? How liberty I'm giving them to talk to me, or what level of compliment they can offer me. So it's completely on you what boundaries you are setting up and how committed you are in your relationship. Swasti, how can we know the weightage of any topic? Topic of what? Competitive exam की बात कर रहे हैं. तो आई थिंक स्ट्रक्चर में आता है. आप पुराने क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे, उसमें भी पता चल जाता है कि किस टॉपिक पर. नो, यू रियली हैव टू डू लिटिल रिसर्च. गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है. पुराने स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड ऑन इट, आप उनसे बात कर सकते हैं. यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज, एंड उससे उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक कितने वेटेज पर है. Hi DJ, would you like to join in? Or anybody who wants to join in and wants to talk some sense, okay, wants to ask some question regarding which can help other people also in terms of any confusion or something. I would like them to be a part. Thank you. ये वैसे क्वेश्चन नहीं था, ये कॉम्प्लीमेंट था गिरधारी, तो आपको यहीं पे लिखना था सो दैट पीपल ऑल्सो नो, इसलिए मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया. थैंक यू सो मच. ओके. हाय आरती, हाउ आर यू? हाँ, लेकिन एवरी ईयर पैटर्न चेंज नहीं होता है, और इफ़ यू आर वन ऑफ दोज जिनका इसी साल पैटर्न चेंज हुआ है, देन इट्स अ हार्ड लक. देन यू रियली हैव टू स्टडी द एंटायर कोर्स. ओके, मैं बताती हूँ. वन ऑफ माई हस्बैंड, ही इज़ अपेयरिंग फॉर M.Tech. ही इज़ अ B.Tech एंड नाउ ही इज़ अपेयरिंग फॉर M.Tech. और M.Tech में सिंस वी बिलोंग टू फॉर्ज, हमारा अलग एग्ज़ाम होता है, मतलब ऑफिस का अलग एग्ज़ाम होता है, एंड दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर विच कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी ईयर. दे डोंट हैव अ सेम पैटर्न. What do? They study as much as they can in their busiest schedules, and that's it. So it's all up to you. It's all up to you completely what you are studying and how much you can study. That's it. Thank you, Girdhari. Thank you for joining in and sharing, asking so many questions. I hope I had given value to your time which you have given to me. Okay. Thank you, Swasti. गोवा इज़ गुड दीज डेज. यू कैन कम एनी टाइम इन गोवा. गोवा में कोरोना भी ज़्यादा नहीं है, सो इट्स ऑल अप टू यू. वेन एवर यू वॉन्ट टू प्लान यू कैन कम हेयर, एन्जॉय. अभी ठीक है, इट्स डिसेंट. दैट्स इट. yes Vaibhav, thank you. So is there anybody else who wants to ask some question? और आई एम हैप्पी टू सी यार, दिन में मतलब मैं 1:30 बजे लाइव कर रही हूँ, एंड आई स्टिल लाइक यू पीपल आर जॉइनिंग मी इन, आस्किंग मी क्वेश्चंस. आई एम रियली सो हैप्पी एंड रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल. Sincerely, my voice is like refreshing.
Thank you, Fit Life. What is your name, Fit Life? मैं इंडिया से ही हूँ. आई कॉल माई सेल्फ एन इंडिया एन इंडियन, क्योंकि वी कीप ऑन ट्रांसफरिंग हेयर एंड देयर. तो जहाँ जहाँ पर मैं हूँ मैं वहीं से हो जाती हूँ. दैट्स इट. ओके. Glad to meet you, Swasti. फिट लाइफ ने मुझे अपना नाम नहीं बताया. रियली वांट टू नो द नेम ऑफ फिट लाइफ. Yes, Vaibhav, indeed. Okay. So, shall I end the live now? If you have any question again, you can ask. Otherwise, मैंने already आधा घंटा लिया है आप सबका. So, I think that's enough for today. What say? Okay, so I'll catch you up again in some time, maybe in evening today again. I'll try to be as frequent on live as I can. And Fit Life name Priyanka. आपको कैसे पता वैभव प्रियंका? Her name is Tenzin. Tenzin. Okay, pronunciation पे मुझे बहुत काम करना पड़ेगा. Okay, glad to meet you, Tenzin, and thank you for your compliment. Thank you. चलो, let's wrap up this live right now. I hope जिन्होंने भी questions पूछा था उनको कुछ मिला होगा, कुछ वैल्यू. एंड मेरे लाइफ पे आने के लिए बहुत 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 शुक्रिया. एंड आई होप आई विल कंटिन्यू प्रोवाइडिंग सम वैल्यू टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू गाइज. थैंक यू. टाटा.